Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your computer teacher. Now we will start lesson number 3, more about Windows 7. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 3, more about the Windows 7. So what you had learned in this lesson in our last class, student? All of you know very well what you had learned. What you had learned, student? Yes. First we had learned about the desktop. What is the desktop, student? Desktop. What is the desktop? The first screen that you see after the Windows software has been loaded is called the desktop. What is the desktop? When we start our computer, after the starting our computer, first screen whichever we are looking on our monitor, this is called the desktop. Then after icons, what is the icon? The small picture that we are looking on our monitor. The small picture that we are looking on our monitor screen means we are looking on our desktop. This is called the icons. Then after we had learned the some icons means in the computer icons which folder is coming. Then after we had done the how to change our wallpaper and screensaver. How to change our screensaver. So first is the screensaver. What is the screensaver? The background image that you see on the desktop is called the wallpaper. When we are starting our computer, after the starting our computer, whatever the picture is looking on our desktop, whatever the picture is looking on our desktop is called the wallpaper. And what is the screensaver, student? Yes, what is the screensaver? All of you think what is the screensaver? Yes, screensaver means the image that you see when your computer is idle for a specified times is called the screensaver. When your computer is ideal for a special times. When your computer ideal for a special time, so this is called the screensaver. And when you start your computer, after the starting our computer first screen, whichever you looking on our screen, this is called the screensaver. So these are we had done how to change our screensaver and how to change our wallpaper. Then after we had done changing the wallpaper, then changing the screensaver. How to change our screensaver and how to change our wallpaper. Then after we had done the Window Explorer. So Window Explorer have a two panes. Window Explorer have a two panes. So first is the left pane and next is the right pane. That left pane is known as the navigation pane. Left pane is known as the navigation pane, and whatever we are clicking on the left pane, whatever we are see on the left pane, so when we are clicking that left pane, so that in that left pane's folders, whichever the files and folder in this pane, we are looking in the right side. जब हम लेफ्ट पैन पे जो कुछ भी हमें फोल्डर्स दिखते हैं उस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर कौन से फोल्डर होते हैं वो हमें कहाँ पे दिखेगा? हमारे राइट वाले पैन पे. सो दीज आर वी हैड डन. Then after we had done the libraries. In the libraries default 4 folder is present. In the libraries 4 default folder is present. When we are purchasing our laptop and computer, in that time in our laptops and computer have a 4 default folder is present, so that which folders, documents, music, pictures and videos, that 4 folder is present in our laptops and computer. So up to we had learned in our last class. So now we will start how to create a new folder.
अभी हम न्यू फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अवर न्यू फोल्डर। हमने पढ़ लिया था कि हमारे कंप्यूटर में फोल्डर है तो उसको कैसे देखना है और उसमें क्या क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हमें क्या करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वह हम देखेंगे। नाउ लुक एट हियर, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉलो द स्टेप। उसके लिए स्टेप दी। सो नाउ लुक एट हियर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इन द लेफ्ट पैन ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन क्लिक द ड्राइव एंड फोल्डर इन विच न्यू फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे जो विंडो एक्सप्लोरर है उस पे जाएंगे, विंडो एक्सप्लोरर के स्क्रीन पे जाएंगे। फिर उसके बाद जिस वाले हमें फोल्डर में ड्राइव में क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, वहाँ पे हम क्लिक करें, क्लिक द न्यू फोल्डर। देन यहाँ पे इन द राइट पैन ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन राइट क्लिक द फोल्डर इन विच अ न्यू फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड। A content menu open, bring the pointer to a new option, click the folder option। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे एम्प्टी जगह होगी, वहाँ पे जाएंगे। फिर वहाँ जाके माउस की कौन सी बटन क्लिक करेंगे, माउस की हम राइट वाली बटन क्लिक करेंगे। जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे कंटेंट आएंगे। उस कंटेंट में से NEW न्यू वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आफ्टर द क्लिकिंग न्यू क्लिक करेंगे तब यहाँ पे और कंटेंट्स आएंगे। उस कंटेंट में से हम फर्स्ट वाला जो फोल्डर वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्लिक करके उस फोल्डर को हम नाम देंगे, जो भी हमें फोल्डर को नाम देना है वो हम फोल्डर को नाम देंगे। देन अ न्यू फोल्डर विल बी अपीयर राइट पैन ऑफ द स्क्रीन, और कहाँ पे दिखेगा, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। You will see the name highlight in the name box to help you change it to what you prefer. For example, if you want to name a folder science project, type the science project in the box and press the enter. You will find a folder named science project has been created in the right pane of the window explorer screen। तो हम देखेंगे कि अगर हमें न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है तो हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर हाउ टू क्रिएट अवर न्यू फोल्डर इन द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में हम कैसे क्रिएट करेंगे न्यू फोल्डर को, तो उसके लिए हमें विंडो एक्सप्लोरर पे जाना पड़ता है। देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं एरो लेके आ गई हूँ नीचे, वो है विंडो एक्सप्लोरर। तो वहाँ पे जाके मैं माउस की कौन सी बटन क्लिक की, ये लेफ़्ट वाली बटन क्लिक की। अभी इसको मैं मैक्सिमाइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है, मैक्सिमाइज़ कर दिया है। अभी मुझे डेस्कटॉप पे क्या करना है, फोल्डर को क्रिएट करना है। तो ये फर्स्ट वाला डेस्कटॉप है, उस पर क्लिक करूँगी। उस पर क्लिक किया तो हमारे इसमें डेस्कटॉप में कौन से फाइल्स और फोल्डर है वो आ गए, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे क्लिक किया है, मैं अभी क्या करूँगी, यहाँ पे एम्प्टी प्लेस जहाँ पे है वहाँ पे एरो लेके आ गए और वहाँ पे आके अभी माउस की कौन सी बटन दबाऊँगी, राइट बटन। सो जैसे ही हम राइट बटन क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है NEW न्यू पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखो न्यू के अंदर कौन सी फाइल से और फोल्डर से वो दिख रहा है, मतलब वहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या क्या है न्यू के अंदर। मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, मैं फोल्डर पे एरो लेके जाऊँगी फोल्डर पे और वहाँ पे माउस की लेफ़्ट वाली बटन दबाऊँगी। लुक एट हियर, तो मैंने लेफ़्ट वाले बटन क्लिक की तो यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर करके आ गया है। अभी उस फोल्डर को मुझे नाम देना है, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है साइंस प्रोजेक्ट, तो अभी उस फोल्डर को हम नाम देंगे SCIENCE साइंस एंड देन प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट।
साइंस प्रोजेक्ट करके मैंने उस फोल्डर को नाम दिया है। ठीक है, अभी उस फोल्डर को हमें क्या करना है, सेव करना है। तो अभी मैं एंटर दबाऊंगी। जैसे मैंने एंटर दबा दी तो वो साइंस प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी ये जो फोल्डर्स है आपको जो लैपटॉप में दिख रहे हैं उसकी साइज़ छोटी दिख रही है। अभी उस साइज़ को मुझे बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगी, व्यू में जाऊँगी और यहाँ पे देखो लार्ज करके ऑप्शन है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। देखो एक्स्ट्रा लार्ज किया तो वो फोल्डर बड़ा हो गया। देन लार्ज है, लार्ज पे क्लिक किया तो देखो ये साइंस प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर हमें दिख रहा है। तो ये मैंने साइंस प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। वो कहाँ पे किया मैंने, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे देखो जैसे डेस्कटॉप पे जाएंगे तो डेस्कटॉप पे भी हमें दिख जाएगा साइंस प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर। तो यहाँ पे हमने एक साइंस प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। देन नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर इन द टेक्स्ट बुक। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अवर फोल्डर। देन हमने फोल्डर कर दिया है, क्रिएट हो गया हमारा फोल्डर। अभी उस फोल्डर को हमें रीनेमिंग करना है, उस फोल्डर को हमें नाम देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू रीनेम फाइल्स और फोल्डर फॉलोइंग दिस स्टेप। यहाँ पे स्टेप दी है। इन द राइट पैन, कहाँ पे जाएंगे, राइट पैन पे जाएंगे, कहाँ पे, विंडो एक्सप्लोरर में। क्लिक द फाइल्स और अ फोल्डर यू वांट टू रीनेम, यू डू नॉट नीड टू ओपन इट। उसको, उस फोल्डर और फाइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। उस पे जाएंगे हम और क्या करेंगे, माउस की कौन सी बटन दबाएंगे, वहाँ पे जाके राइट वाली बटन। क्लिक द ऑर्गेनाइज रीनेम, वहाँ पे रीनेम करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम एंड रीनेम द कंटेंट मेनू दैट अपीयर। टाइप द न्यू नेम्स English project in the highlighter area and press the enter. You will notice that the name of the folder has been changed. जो हमने साइंस प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर किया था, उस प्रोजेक्ट को अभी हमें क्या करना है, नेम चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फोल्डर पे जाके माउस की कौन सी बटन दबाएंगे, माउस की राइट वाली बटन दबाएंगे। जैसे राइट बटन दबाएंगे तो वहाँ पे कंटेंट आ जाएंगे। उस कंटेंट में से रीनेम का स्पेलिंग RENAME, रीनेम का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो जो नाम हमने दिया है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर ब्लू होने के बाद उसको हम चेंज करेंगे, जो भी हमें नाम देना है, और एंटर की दबाएंगे। सो नाउ लुक एट हियर, ये जो हमने साइंस प्रोजेक्ट करके हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है, उसको अभी हमें नाम चेंज करना है। तो वहाँ पे जाके देखो, मैं माउस के अभी कौन सी बटन दबाऊंगी, राइट वाली। देखो जैसे मैंने राइट बटन दबा दी तो यहाँ पे कंटेंट आ गए। तो यहाँ पे मेरे इसमें सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है रीनेम। तो रीनेम पे जाके मैं क्लिक कर दूँगी। जैसे रीनेम पे जाके मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखो साइंस प्रोजेक्ट जो है वो ब्लू कलर का हो गया। अभी उसको मैं नाम चेंज करूँगी। हमें क्या देना है नाम, इंग्लिश प्रोजेक्ट, इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश PROJECT प्रोजेक्ट। देखो हमने उसको क्या नाम दिया है, इंग्लिश प्रोजेक्ट। अभी जैसे मैं उस पर क्लिक कर दूँगी, एंटर कर दूँगी, तो वो हमारा फोल्डर है उसका नाम चेंज हो जाएगा। देखो जो हमारा साइंस प्रोजेक्ट था उसका हमने नाम चेंज करके क्या किया है, इंग्लिश। देखो यहाँ पे जो हमारा साइंस प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर था, अभी उसका नाम हमने क्या किया है, इंग्लिश प्रोजेक्ट करके हमने उसका नाम चेंज किया। तो इस तरह हमारे जो फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर
फाइल्स और फोल्डर जो होते हैं उनका नाम हम चेंज कर सकते हैं रीनेम के ऑप्शन में जाके। उसके लिए हमें उस फोल्डर पे एरो लेके जाना पड़ता है। देन उसके बाद माउस की कौन सी बटन दबाएंगे, वहाँ जाके राइट बटन दबा के रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा और फिर हम उसका रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। देन अगेन फास्ट फॉरवर्ड में लिखा है शॉर्टकट की, हमें हमारे फोल्डर और फाइल का शॉर्टकट में हम रीनेम कर सकते हैं बाय यूजिंग द F2 की। जो F2 की बटन होती है फंक्शन की, उसका यूज़ करके हमारे फाइल्स और फोल्डर को हम चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द कॉपी एंड मूविंग ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स। तो हमारे फाइल्स और फोल्डर्स है उसको हमें कॉपी करना है और क्या करना है, मूव करना है। तो कैसे करेंगे, नाउ लुक एट इट। कॉपी, सो नाउ अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, copy and a file or a folder is placing it in another destinations without moving it from the original location source। तो कॉपी का मतलब क्या होता है, हमारी जो फोल्डर है हमें उस प्लेस पे तो रखनी है, उसके अलावा वो फोल्डर हमें दूसरे जगह पे भी लेके जाना है। उस फोल्डर को उस जगह पे ही रखना है और उसके अलावा दूसरे जगह पे भी लेके जाना है। 2 प्लेस पे सेम ही फोल्डर चाहिए, लेकिन वन सेम फोल्डर को हम सेम नाम नहीं दे सकते। जैसे इंग्लिश प्रोजेक्ट हमने नाम दिया था फोल्डर को, तो अगर हमें दूसरा फोल्डर सेम करना है इंग्लिश प्रोजेक्ट का तो उसको हमें 1 2 3 ऐसे नाम देना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज इंग्लिश प्रोजेक्ट कॉपी ऐसे भी नाम, कुछ भी नाम देना पड़ेगा, लेकिन एक ही नाम से हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में हम फोल्डर नहीं बना सकते हैं सेम नाम से। देन मूविंग मतलब उस प्लेस से वो हट जाएगा। नाउ दिस आल्सो underline, moving is a file or folder is shifted from its original location to another location। मूविंग मतलब ये प्लेस से उस प्लेस पे मूव करना, उस जगह पे रहेगा ही नहीं। कॉपी मतलब उस जगह पे भी रहेगा फोल्डर और दूसरे जगह पे भी हो गए, 1 फोल्डर 2 प्लेस पे रहेंगे। और मूविंग मतलब वो फोल्डर दूसरे प्लेस पे मूव हो रहा है, जा रहा है, वो सिर्फ वन ही प्लेस पे रहेगा। उसको कॉपी और कट बोलते हैं। कट मतलब हो जाएगा कॉपी करके कट हो जाएगा, और कट मतलब उस जगह से परमानेंटली कट हो जाएगा और जहाँ पे जाके हम पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड देन कट मतलब उस प्लेस से हट के वो दूसरे प्लेस पे चला जाएगा। एंड कॉपी मतलब वो जो फोल्डर है उस प्लेस पे भी रहेगा, दूसरे प्लेस पे भी रहेगा। यूजिंग अ ऑर्गेनाइज मेनू, देखो यहाँ पे देयर आर द वेरियस वे कॉपिंग एंड मूविंग द फाइल्स और फोल्डर विच इज़ द डिस्कस हियर। देखो यहाँ पे 2 मेथड्स होती है हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी करने की। सो यूजिंग द ऑर्गेनाइज मेनू, टू कॉपी मीन्स मूव करना है फोल्डर को। अ फाइल्स और अ फोल्डर डू नॉट फॉलोइंग, क्लिक द फाइल्स एंड फोल्डर टू बी अ कॉपी, क्लिक द ऑर्गेनाइज मतलब हमारे माउस की राइट वाली बटन्स को क्लिक करना है उस फोल्डर पे। कॉपी और कट और कॉपी और मूव फाइल्स, कॉपी करना है मतलब कट करना है, मूव करना है मतलब कॉपी करना है, फाइल और फोल्डर। देन राइट क्लिक द फाइल्स और फोल्डर यू वांट टू कॉपी और कट एंड सिलेक्ट द कॉपी और द कंटेंट मेनू। Then step number 3, click the designation folder where you file or folder it is to be a copy or move। Then click organize, then paste, फिर उसके बाद पेस्ट करना है। राइट क्लिक द डेजिग्नेशन फोल्डर एंड सिलेक्ट द पेस्ट। Then step number 5, you will find the files or folder copy moving the designation folder। तो हमारे जो फाइल्स और फोल्डर होते हैं उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी भी कर सकते हैं, कट करके उसको पेस्ट करना। तो उसके लिए स्टेप होती है, नाउ लुक एट हियर, ये जो हमने इंग्लिश नाम का प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है,
इंग्लिश प्रोजेक्ट नाम का हमने जो फ़ोल्डर किया था, सेम ऐसे ही फ़ोल्डर मुझे और चाहिए। तो उस पे जाऊंगी मैं और माउस की कौन सी बटन दबाऊंगी, वहाँ पे जाके माउस की मैंने राइट वाली बटन को दबाया। जैसे ही राइट वाली बटन दबाई तो पहले हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो COPY कॉपी नाम का यहाँ पे क्या है ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करूँगी। देखो कॉपी, तो वो फ़ोल्डर क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। अभी मुझे वो फ़ोल्डर जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो मुझे दूसरे वाले इसमें चाहिए। जैसे मुझे वो फ़ोल्डर यहाँ पे क्लास 4 ऑनलाइन है उसके अंदर चाहिए। मैंने वहाँ से कॉपी कर दिया है। अभी यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया, यहाँ पे भी है और वो हमारे डेस्कटॉप पे भी दिखेगा। देखो यहाँ पे भी है और वो फोल्डर सेम उसके अंदर भी है। तो सेम फोल्डर ही दोनों के अंदर भी आ गया। अब मैंने क्या किया था, कॉपी किया था, ठीक है। नाउ अभी मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है डेस्कटॉप पे और मुझे दूसरे फोल्डर्स के अंदर डालना है। इस फोल्डर को मुझे यहाँ से हटाना है डेस्कटॉप पे से और मुझे दूसरे फोल्डर पे डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं माउस की क्या दबाऊंगी, राइट वाली बटन दबाऊंगी, उस पर सॉरी लेफ़्ट वाली उस पर जाके मैंने माउस की राइट वाली बटन दबाई है एंड यहाँ पे जो CUT कट करके ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगी। तो ये कट हो गया है। अभी वो मुझे दूसरे फोल्डर पे पेस्ट करना है। तो वहाँ पे जाके मैं अभी मुझे वो कहाँ पे चाहिए, वो हमारे डेस्कटॉप पे था। मुझे ये दिस इज़ PC करके है यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे आके मैं फिर से माउस की कौन सी बटन दबाऊंगी, राइट वाली बटन दबाऊंगी और यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर चाहिए। तो यहाँ पे आगे में और माउस की राइट वाली बटन दबा के ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। तो ये फोल्डर यहाँ पे आ गए हैं इंग्लिश प्रोजेक्ट। अभी हम डेस्कटॉप पे देखेंगे तो वहाँ से कट हो गया। अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है क्या, नहीं, ये यहाँ से कट हो गया। क्या हो गया है, कट हो गया। वो जो हमने फोल्डर यहाँ पे बना था डेस्कटॉप पे उसको हमने क्या किया है, मूव कर दिया है। यहाँ से डिलीट करके वहाँ पे मूव कर दिया। कॉपी करेंगे तब वो जहाँ पे था वहाँ पे भी रहेगा और वहाँ से दूसरे जगह पे भी वो रहेगा। तो 2 प्लेस पे रहेंगे। कॉपी करते समय वो फोल्डर सेम ही नाम के 2 प्लेस पे रहेंगे और कट करेंगे तो जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से कट होके दूसरे प्लेस पे वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पेस्ट करना पड़ता है। तो ये हमने माउस का यूज़ किया था, ठीक है। अभी ये जो फोल्डर है इंग्लिश प्रोजेक्ट उसको मुझे क्या करना है, उसको हमें कॉपी करना है बाय यूजिंग द की, हमें कीज़ का यूज़ करके। तो सबसे पहले कॉपी, अगर इस फोल्डर को मुझे कॉपी करना है तो उसके लिए हमारे कीज़ शॉर्टकट कीज़ होती है। कौन सी शॉर्टकट की, Ctrl+C। उस फोल्डर पे जाएंगे, ठीक है। उस पे वो फोल्डर हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो उसके लिए कंट्रोल उसके साथ C वाली बटन साथ में ही दबाएंगे। दोनों बटन हमें साथ में ही दबानी। तो Ctrl+C किया, देखो Ctrl+C किया, वो कॉपी हो गया। अभी मुझे पेस्ट करना है तो वो Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो देखो वो सेम आ गया। Ctrl+C किया तो वो कॉपी हो गया, Ctrl+V किया वो पेस्ट हो गया। अभी ये जो हमने इंग्लिश प्रोजेक्ट कॉपी करके फोल्डर किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है कॉपी करके, उसको मुझे यहाँ से हटाना है और मुझे दूसरे जगह पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगी, उस फोल्डर पे जाके, उस फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, उस फोल्डर पे जाके Ctrl+X करूँगी। ये Ctrl+X हो गया है। अभी वो उसको हम डेस्कटॉप पे लेके आएंगे और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, डेस्कटॉप पे जाएंगे यहाँ पे
और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। देखो वो डेस्कटॉप पे आ गया, यहाँ पे भी वो देखो इंग्लिश प्रोजेक्ट कॉपी नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे आ गया। वहाँ से हमने क्या किया था, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल सी से फोल्डर कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है और कंट्रोल सी से एक्स होता है। कंट्रोल सी से वो फोल्डर कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल कट से वो एक्स हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से वो कट हो जाएगा एंड कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो कंट्रोल सी की बटन साथ में दबाएंगे, कंट्रोल और सी की, तो वो फोल्डर कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद वो फोल्डर हमें जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। देन अगर वो फोल्डर हमें वहाँ से कट करना है, वहाँ पे नहीं रखना है, हमें दूसरे ही फोल्डर में रखना है, तो वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एक्स करूँगी और जहाँ पे वो फोल्डर लेके जाना है वहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगी तो वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द शॉर्टकट की। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो ये आपको सबको लर्न करना है। कॉपी मीन्स कंट्रोल सी, कट मीन कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट मीन कंट्रोल वी। फाइल को, फोल्डर को कॉपी करना है तो उसके लिए कंट्रोल सी दबानी पड़ती है, उसको कट करना है तो कंट्रोल एक्स करनी पड़ती है और उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। कॉपी के बाद भी पहले हम क्या दबाएंगे, अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे और जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, और कट करना है तो कंट्रोल एक्स करेंगे और उसके बाद कंट्रोल वी दबाएंगे, मतलब पेस्ट हो जाएगा। then after we had, now look at here, next is the delete और files and folder। हमें फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे हम, तो लुक एट हियर, टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर डू द फॉलोइंग। उसके लिए स्टेप दी है, क्लिक द फाइल्स और फोल्डर टू बी अ डिलीटेड, क्लिक द ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। तो उसके लिए हम उस फोल्डर पे जाएंगे, फोल्डर पे जाके माउस की राइट वाली बटन दबाएंगे और फिर वहाँ पे डिलीट ऑप्शन होगा, वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक द फोल्डर्स एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द कंटेंट मेनू। उस मेनू में से हम डिलीट ऑप्शन को दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। देन यहाँ पे शॉर्टकट की भी दी, अगर सिर्फ हम डिलीट करेंगे वो फोल्डर को तो वो फोल्डर वहाँ से डिलीट होता है। और शिफ्ट डिलीट दबाएंगे, शिफ्ट और डिलीट की बटन्स हम दबाएंगे तो वो वहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। जब हम शिफ्ट के साथ डिलीट की बटन दबाएंगे तो वो फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, और सिर्फ डिलीट होंगी तो करेंगे तो वो डिलीट वहाँ से ही होंगी। Then step number 3, the message box will be appear। जैसे हम डिलीट पे दबाएंगे तो हमें ऐसा एक मैसेज बॉक्स दिखेगा। यस, क्लिक द यस, यू विल फाइंड द फाइल्स और फोल्डर हैज़ बीन डिलीटेड। देखो कभी कभी हम क्या होता है, हमारे हाथ से गलती से डिलीट बटन क्लिक हो जाती है, तो फिर वो मैसेज पूछते हैं कि वो फाइल हमें डिलीट करना है कि नहीं। अगर हमें वो फाइल को डिलीट करना है तो हम एस लिखेंगे, अगर वो फाइल को नो करेंगे तो वो फाइल डिलीट नहीं होती। जैसे हम मोबाइल में फ़ोटोज़ डिलीट करते हैं, जब हम फ़ोटो डिलीट करते हैं मोबाइल में तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट, आर यू वांट टू डिलीट, यस और नो रहता है। सेम यहाँ पे भी अगर उस फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है तो जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज लिख के आएगा। अगर वो फोल्डर और फाइल को हमें डिलीट करना है तो एस करेंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे। व्हेन द फोल्डर इज़ डिलीट इट कंटेन आर ऑल्सो डिलीटेड एंड मूव इट द रिसाइकल बिन। वो जो फाइल्स और फोल्डर से डिलीट करने के बाद हमारे कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। टू डिलीट द फाइल्स और फोल्डर परमानेंटली एम्प्टी द रिसाइकल बिन इन द रिसाइकल बिन विंडोज। वो जो फाइल्स और फोल्डर्स है अगर हम रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो हमारे रिसाइकल बिन में प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, जो हमने एक
यहाँ पे फोल्डर किया था, जो हमने यहाँ पे इंग्लिश प्रोजेक्ट करके हमने फोल्डर किया था, अभी उसको मुझे डिलीट करना है। तो देखो, जब हम डिलीट दबाएंगे ना तो वो फोल्डर कहाँ पे रहता है, रिसाइकल बिन में रहता है। अगर हम शिफ्ट डिलीट के साथ फोल्डर को डिलीट करते, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, मतलब वो रिसाइकल बिन में भी हमें नहीं दिखेगा। अगर हम शिफ्ट डिलीट के साथ फोल्डर को क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर रिसाइकल बिन में भी नहीं दिखेगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अभी ये जो हमने इंग्लिश प्रोजेक्ट करके और फोल्डर क्रिएट किया था, उसको अभी डिलीट करना है। तो वहाँ पे मैं एरो लेके जाऊँगी और एरो लेके जाके फिर माउस की कौन सी बटन दबाऊंगी, राइट वाली। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे राइट बटन दबाऊंगी। जैसे राइट बटन दबाऊंगी तो यहाँ पे देखो कंटेंट आ गए, तो उसमें से ये यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, उस पर दबाऊंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। देखो वो डिलीट हो गया, वो फोल्डर क्या हो गया है, डिलीट हो गया। नाउ यहाँ से डिलीट किया हमने, अभी मैं आपको डिलीट बटन दबा के कैसे डिलीट करना है उसको, तो इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, दिस इज पीसी में हमने देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ोल्डर किया था इंग्लिश प्रोजेक्ट, अभी उसको भी डिलीट करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे हमारा एरो आ गया, हमने उसको सिलेक्ट कर दिया है, हमारे लैपटॉप में डिलीट नाम की बटन से, यहाँ पे डिलीट नाम की बटन है, उस पर दबाऊंगी तो वो डिलीट हो जाएगा। देखो मैंने डिलीट दबाई तो वो डिलीट हो गया, वो फोल्डर डिलीट हो गया। तो इस तरह हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को हम डिलीट कर सकते, ठीक है। अभी मेरे लैपटॉप में ऑप्शन नहीं पूछा था, ऐसे मैसेज नहीं पूछा था, तो कहीं पे पूछते हैं कहीं पे नहीं पूछते, तो यहाँ पे हम मुझे ऑप्शन नहीं आया था डिलीट का। सो दिस इज़ द हाउ टू डिलीट आवर फाइल। तो 2 टाइप से हम डिलीट कर सकते हैं हमारे फाइल को। एक तो उस फोल्डर पे जाके माउस की राइट वाली बटन दबा के उसको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे उस आइकन को हम सिलेक्ट करके देन उसके बाद हमारे कीबोर्ड में डिलीट नाम की बटन होती है, तो उससे भी हम डिलीट कर सकते हैं, शिफ्ट डिलीट भी दबा के और डिलीट दबा के भी। शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो वो फोल्डर रिसाइकल बिन में भी होता है। सो लाइक दैट वी कैन डिलीट आवर फोल्डर्स एंड फाइल. Now these gadgets we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.